Coordinator, Composite Regional Center, Srinagar, Bamina. And we have with us today's expert, Dr. Khalid Muzammil Ghani, faculty from Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, NIT Srinagar. So he will be deliberating upon the, we can say the motive of today's our assemblies over here will be the best practices in the sustainability. As we already know, from 1st September to 15th of September, we used to celebrate the Swachhta Pakhwada. So today we are having the second series of events. So in this series we have invited our guest. So he will be organize this program. मैं इसको दिल से मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आज देखेंगे 30-40 बच्चे अगर आते हैं तो 50 घरों में ये अवेयरनेस जाएगी, 50 घरों में 50 खानदानों को अवेयर कर रहे हैं। दिस इज वंडरफुल प्रोग्राम एंड we should organize such type of activities. Even the people who are here, students को भी कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। मैं एक बार फिर शुक्रिया भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ रीजनल डायरेक्टर साहब को और उनके हमारे मानव से जो डायरेक्टर साहब हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और हम सबका फ़र्ज़ है इस पर हम लोग काम करें और आगे जाके अपनी सोसाइटी को एकदम ठीक करें ताकि आने वाले वक्त में हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Sustainable Development Goal 2030. Earlier in 2000, the UNO propagated the Millennium Goals for 50 years across the world. The Millennium Goals were to eradication of the poverty, to focus on the gender differences, basically education and environmental issue. Here we are talking about the environmental issue. The goal has not been met so far. Thereafter in 2015, UNO declared Sustainable Development Goal. These goals are entirely different from the Millennium Development Goals. In the Sustainable Development Goals, these are those goals in which you must take care of your future generations as well. Okay? We talk much about development. Development is not a very easy process. In the development in 1972, there was this limit to growth. You must surprised to know when we are developing and trying to touch the sky here. So why we are talking about the limit to growth? Because the planet is limited. There is only one planet Earth where we, a human being, may survive, and we have a limitations in each every corner. We can't compete land. We can't compete any other animal. But the God has gifted certain potential, certain caliber, certain abilities on the not determined by that, but it is determined by what type of environment you have. Especially during winter, air pollution is there. So although you have created all the system, like let's say you afford an air purifier also for your house, but when you will go outside, then you have to face that doesn't be anything. So I will brief out because the time is not and things happen like very quickly. Some local सफाई ईमान भी है और इबादत भी है। और बदनसीबी यह है कि 1400 साल पहले जिस बात की तरफ हमें इशारा किया गया था, हमने वो इशारा न तब समझा ना हम आज समझ रहे हैं। जिस कौम को दिन में 5 दफ़ा वज़ू करने का हुक्म दिया गया है, वही कौम आज उसी कौम को आज सफाई के बारे में समझाना पड़ता है। हम जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में हम में से हर एक इसका एम्बेसडर होना चाहिए था कि हम सफाई की तरफ खुद भी तरगीब दें और लोगों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। मगर उस कौम को क्या हम बोलेंगे जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पे आसमान ने हमको दे मारा। हमने वो अपनी मीरास ही ख़त्म कर दी है। हाँ, वो कौम है आज जो दरियाओं में अपनी लैट्रिन से निकलने वाला फजला डालते हैं। हाँ, वो कौम है जो आज अपने घर से कूड़ा करकट निकालकर रास्ते पे डालने वाले हैं, जिनके बारे में
अल्लाह ने कहा है वही वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन। तो आप यकीन कर लीजिए, आप मस्जिद में नहीं जा पाएंगे जब तक वजू नहीं करेंगे, यानी पाकी हासिल नहीं करेंगे। मस्जिद की बात नहीं, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, मंदिर की बात नहीं, आप गुरुद्वारे में भी नहीं जा सकते हो। जब अल्लाह ने शर्त रखी है, जब अल्लाह ने ये, आप बेटियां जरा समझ लीजिए, जब अल्लाह ने ये शर्त रखी है कि पाकी के बगैर आप मेरे करीब आ नहीं सकते हैं, आप कुरान को छू नहीं सकते हैं, आपको इस माहौल में, जो माहौल आज पूरे दुनिया में हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी जिम्मेदार फरिश्ते नहीं है, इसका जिम्मेदार अल्लाह ताला नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं। आप आज पानी पीते हैं, वो भी आज खरीद के लाते हैं। वो लोग भी हमारे असलाफ थे जो दरिया पे बैठ के ऐसे पानी उठाकर पीते थे, लेकिन आज हमें बिस्लरी वाटर में भी डाउट लग रहा है कि नहीं। इग्नू, आप सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। So far as the presentation is concerned, this was wonderful presentation presented by the assistant professor from environment department. So far as environment is concerned, we are all concerned with the environment. हम सब जैसे भी सर कह रहे थे कि अगर हम वाकई में इस पे काम करना शुरू करेंगे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आज इस बार अगर आप खुद देखेंगे गर्मी कितनी हुई कश्मीर में, इससे पहले ऐसी गर्मी होती थी नहीं। मेरे बचपन में जब भी कभी कभार 32-33 डिग्री अगर हो जाता तो शाम को बारिश होती थी, लेकिन अब की बार 36 पहुंच गया, 37 पहुंच गया, इवन कि अगर प्रोजेक्टेड देखा जाए तो 38-39 भी पहुंचा होगा। और आने वाले वक्त में, आने वाले समय में हो सकता है इससे और भी। हमने डिफॉरेस्टेशन किया, जंगलात हमने ख़त्म किए, हमने अपना वाटर बॉडीज़ ख़त्म कर दी, और हर जगह हमने पोल्यूशन कर दिया। नॉट ओनली पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, हर जगह। तो गाड़ियां देखो कितनी सारी हैं, हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। ज़रूरत एक ही है लेकिन 3 गाड़ियां हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी बहुत। इसे बेसिकली हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है, एक प्रोग्राम चलता रहता है। दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी सच इसमें है पखवाड़ा है ना, स्वच्छ पखवाड़ा, इससे इट्स रिलेटेड। तो हम लोगों का ये पूरे हर ऑर्गेनाइजेशन में हम बेसिक और प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज दिस, जस्ट अवेयर द पब्लिक, जस्ट अवेयर द पीपल, अवेयर द स्टूडेंट्स, सो दैट ये आगे जाके आप काम करेंगे इस पे। इसमें सिर्फ हमारा ही काम नहीं बल्कि for their talks. With this, the today's session comes to an end. Thanks for joining. You will have to wait for